Hello dear students, welcome to the next video of EduLite channel. I am Vivek Yadav, your physics teacher cum mentor. Dear students, in the previous videos we have learnt about the motion in one dimension and we were discussing the basic terms which are required to understand the concepts of rest and motion. We had already discussed four quantities, namely distance, displacement, speed and velocity. We have already discussed about these four quantities, and from our previous discussion it was concluded that displacement and velocity are vector quantities. They need to be specified the direction to understand the concepts of displacement and velocity, whereas distance and speed, they are vector quantities. Right? Okay. Now we are going to study about one more physical quantity, that is acceleration. Acceleration is also an important physical quantity which describes rest and motion. So let us start with acceleration, and when I am going to start, you know what you have to do? You know? Yes, you know. Just you have to sit in a relaxed position at the front, at the corner of your room where you get just no outside disturbances. Okay, you have to try to watch the video completely in a single time. Okay, no repetition of the videos. Try कीजिए और try कीजिए कि आप साथ के साथ notes बनाते रहें. Whenever I will be just not in front of the board, you can make it note down the notes. Okay, you will just pause the video at those moments. और बच्चों जो अपन काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं तो इन काइनेमेटिक्स में कंसेप्ट्स को क्लियर करने के लिए हमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी करने चाहिए. तो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व कीजिए. ठीक है, ट्राई टू सॉल्व दोज न्यूमेरिकल्स एंड इफ यू कम अप विद एनी प्रॉब्लम देन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स. Okay, just be confident and try to solve the numericals. Okay, so let us start with acceleration. What is acceleration? Acceleration is a term that you might have heard again and again. Okay, whenever we are driving any vehicle, right? It may be a two-wheeler or it may be a four-wheeler. It may be car, jeep, scooty, bike. बच्चों को कार कहाँ मिलती है? It may be like a bike. So whenever you are riding over a bike, then generally when we speed up, you just accelerate the bike, the speed of the bike increases. Or it may be the case of scooty as well. So what is acceleration? Acceleration is rate of change of velocity of an object. तो बच्चों, ऑब्जेक्ट की जब वेलोसिटी चेंज होती है तो वो कितनी रेट से चेंज होती है, उस चेंज को मेजर करते हैं अपन और उसको एक एक्सीलरेशन कहा जाता है. सो व्हाट इज एक्सीलरेशन? देखिए यहाँ पर एक टर्म आई रेट. तो प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने आप लोगों को बताया था, रेट का मतलब होता है टू मेजर द चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. टाइम के रिस्पेक्ट में जब आप चेंज को मेजर करते हो तो उस चीज़ को हम रेट कहते हैं. एंड व्हाट यू आर मेजरिंग? वी आर मेजरिंग द चेंज ऑफ वेलोसिटी. क्लियर? तो व्हेन द वेलोसिटी इज चेंज्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम, देन दैट थिंग बिकम्स एक्सीलरेशन. सो व्हाट इज एक्सीलरेशन? सी हियर, एक्सीलरेशन इज चेंज ऑफ वेलोसिटी and with respect to time. Okay, with respect to time, that is known as acceleration. Okay, so what is change? Let us understand the word change. Acceleration is, beta, acceleration is what? It's change in velocity, means delta v upon delta t. Delta t is change in time. Okay, change in time. This is acceleration. Formula for calculating the acceleration. And how do we measure the change? Generally, the change is measured as final value minus initial value. Okay, see what is it? It is final velocity minus
इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम अपॉन टाइम इंटरवल। जिस टाइम इंटरवल में अपने वेलोसिटी का चेंज निकाल रहे हैं, तो फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं हम विद द वर्ड स्मॉल v, और इनिशियल वेलोसिटी को मेजर करते हैं विद द वर्ड स्मॉल u, एंड टाइम इंटरवल इज t, देन दैट बिकम्स एक्सीलरेशन v माइनस u अपॉन t। v और u सिंबल्स को थोड़ा सा ध्यान रखना है। सिंबल्स का क्या, ऑप्टिक्स में v और u का यूज करते हैं। 10th क्लास की ऑप्टिक्स आप पढ़ के आए हो, वहां पर आपने u और v यूज किया था। यस, तो u वाज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v वाज इमेज डिस्टेंस, बट हेयर v represents in kinematics, v represents the final velocity of the object and u represents the initial velocity of the object. Alright, that is the formula for calculating the acceleration of any object. Right, but see, when we are going to calculate the instantaneous acceleration, how we are going to calculate it? What is instantaneous acceleration? I am writing a term, instantaneous acceleration. Instantaneous acceleration. Acceleration of a body at any moment of time. Okay, acceleration of a body at any moment of time is known as instantaneous acceleration. ये वही है बेटा जो कि अपनी instantaneous velocity होती है। ठीक है, वो क्या होती है? Velocity at any moment of time. That was instantaneous velocity, and acceleration at any moment of time is known as instantaneous acceleration. मोमेंट ऑफ टाइम से मतलब क्या है सर? देखिए, जनरली जब अपन स्पीड को मेजर करते हैं, जब हम देखते हैं कि हम कितनी स्पीड से चल रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम लंबी दूरी की बात करते हैं कि यहाँ एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक गए, हमने वो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस सपोज करिए 20 मिनट में ट्रेवल किया, तो अपनी गाड़ी की स्पीड कितनी थी? ठीक है, लेकिन अगर हम किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर स्पीड बताना चाहते हैं तो वो चीज़ कहलाती है अपनी इंस्टेंटेनियस स्पीड। उसी प्रकार हमारा एक्सीलरेशन जो है वो टाइम के साथ क्या रहता है, चेंज होता रहता है। कभी हम स्पीड ज़्यादा दे देते हैं, कभी कम कर लेते हैं, कभी ब्रेक लगा देते हैं। तो अपनी जो स्पीड है वो टाइम के साथ बेटा वेरी करती रहती है। इसी प्रकार हमारा एक्सीलरेशन भी वेरी करता है। तो जब एक्सीलरेशन बार बार टाइम के साथ वेरी कर रहा हो और आपको ये बताना हो कि किसी पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पर गाड़ी का एक्सीलरेशन कितना था, तो उस एक्सीलरेशन को इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन कहते हैं। ठीक है, अब एक कार जा रही थी, क्या जा रही थी? कार 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, कार चलाने वाले ने सेट हो रखा था, मतलब ही वॉज ड्रंक। ठीक है, एक बार अपन न्यूज़ पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में, तो ही वॉज ड्रंक, और हमने अगले दिन न्यूज़पेपर में पढ़ी कि अ ड्रंक ड्राइवर हिट्स अ पोल एंड इज डेड ऑन द स्पॉट। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है कि उस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पर जब उसने खंबे को टक्कर मारी, उस समय गाड़ी की स्पीड कितनी थी। ठीक है, उस समय गाड़ी का एक्सीलरेशन कितना था। द मोमेंट ऑफ टाइम व्हेन द कॉलिजन टुक प्लेस, at that moment of time what was the acceleration of the vehicle or what was the speed of the vehicle. So that things are known as instantaneous acceleration or instantaneous speeds. Clear? ठीक है, तो देखिए एक्सीलरेशन एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम इज नॉन एज इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, और ये चीज़ निकाली जाती है जब हमारा टाइम इंटरवल बहुत स्मॉल हो। यानी कि एक्सीलरेशन का हमने फॉर्मूला पढ़ा, a इज इक्वल्स टू डेल्टा v बाई डेल्टा टी। दिस इज एवरेज एक्सीलरेशन। व्हाट इज इट? इट इज एवरेज वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन। ठीक है, ध्यान रखनी है इस चीज़ को। एवरेज का मतलब लंबे टाइम पीरियड तक, और अगर मैं किसी मोमेंट ऑफ टाइम पर निकालना चाहूँ, एक पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम पर, तो उस समय अपना डेल्टा टी जो है वो बहुत स्मॉल हो जाता है, और जब डेल्टा टी जो है डेनोमिनेटर जो है वो बहुत स्मॉल हो जाता है, तो डेल्टा चीज़ है वो डी में कन्वर्ट हो जाती है। किस में कन्वर्ट हो जाती है? डी में कन्वर्ट हो जाती है। तो हमारा एक्सीलरेशन क्या बन जाएगा? dv बाई dt। कौन सा एक्सीलरेशन है ये बच्चों? इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। कौन सा एक्सीलरेशन? इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन।
एक्सीलरेशन एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम इज नॉन एज इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। किसी मोमेंट ऑफ टाइम पर क्या था, ठीक है, उस चीज़ को बोलते हैं। क्लियर, बात समझ गई। अपन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं और ये इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इस प्रकार से कैलकुलेट होता है। तो बच्चों अब इसी चीज़ का ध्यान से देखना है। एक्सीलरेशन इज इक्वल्स टू क्या हो गया, dv/dt। इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, dx से, डिवाइड करते हैं dx से, तो अपने पास बच गया dx/dt। ठीक है, dx/dt क्या होता है, वेलोसिटी होती है। dv/dx क्या होता है, dv/dx। बच गया। तो एक्सीलरेशन किसी ऑब्जेक्ट का अपन ने कैलकुलेट किया और वो आ गया v dv/dx। ये भी हमारा कौन सा एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। और यहाँ पे जो क्वांटिटी यूज हुई है ना, ये dv/dx क्वांटिटी यूज हुई है। इस क्वांटिटी को हम बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक, तो वेल ग्रेडियंट शब्द क्या होता है सर, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेडियंट। तो बच्चों फिजिक्स में ना चेंज को मेजर करने के लिए बस ज़्यादा नहीं, अक्सर 2-3 क्वांटिटीज़ का ही इस्तेमाल किया जाता है जब अपन चेंज मेजर करते हैं। तो पहली क्वांटिटी रेट। रेट का मतलब क्या होता है कि व्हेन एवर यू आर मेजरिंग द चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जब आप किसी ऑब्जेक्ट का चेंज टाइम के रिस्पेक्ट में मेजर करते हो तो उस चीज़ को अपन बोलते हैं रेट। ठीक है, चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और जब किसी ऑब्जेक्ट का चेंज मेजर किया जाता है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन पोजीशन और लेंथ, क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं ग्रेडियंट। बात समझ गए, क्लियर हो रही है बात, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ही मैं बोर्ड के साइड से हटूँ क्या करना है, वीडियो पॉज करना है और फिर नोट्स बनाने हैं। भूले तो नहीं भूले। तो अभी एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूँ मैं आप लोगों को। बहुत सारे बच्चों का मेरे पास फ़ोन आया, बात हुई, बहुत सारे बच्चों ने ये कहा कि सर सिलेबस चेंज हो गया है। हाँ, कोविड-19 के चलते हुए, पेंडेमिक एनवायरनमेंट के चलते हुए सिलेबस का कुछ पोर्शन CBSE ने डिलीट कर दिया है। तो सर बताइए जो हम पढ़ रहे हैं वो चीज़ हमारे सिलेबस में है कि नहीं है। तो बच्चों जो चीज़ आपकी रिमूव की है वो आप इजीली CBSE की वेबसाइट पर जा करके देख सकते हैं कौन कौन से पार्ट्स आपके रिमूव कर दिए गए हैं। अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि कुछ बच्चों को जो कि नीट की इस समय प्रिपरेशन कर रहे थे, जो इस समय IIT JEE एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे थे, मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे जो NDA की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या अपकमिंग एग्ज़ाम में से वो चीज़ें हट जाएंगी, क्या वो चीज़ें भी हमारे एग्ज़ाम में नहीं आएंगी। तो भैया बात ऐसी है कि इस चीज़ के बारे में CBSE ने कोई भी गाइडलाइन नहीं दी है। देयर इज़ नो गाइडलाइन ऑफ CBSE रिगार्डिंग द चेंज इन सिलेबस ऑफ JEE, NEET और NDA। ठीक है, इस प्रकार की कोई भी चेंज की हमारे पास कोई भी ऑफिशियल सूचना नहीं मिल पाई है। और इस बात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि जो चीज़ें रिमूव हुई हैं सिलेबस में से वो एक साल भर के लिए नीट और JEE के सिलेबस में से भी रिमूव कर दी जाए। लेकिन क्या होता है कि ये सारी चीज़ें ना बच्चों 11th 12th इन चीज़ें कोर्स की आपस में इंटरकनेक्टेड है। क्या होगा कि अगर आपका एक टॉपिक रिमूव कर दिया तो पिछले टॉपिक का कोई चेंज बना करके ना इस टॉपिक में उठा के दे देंगे। ठीक है, आपको कह देंगे कि एक्सीलरेशन रिमूव किया था हमने, फॉर एग्जांपल एक्सीलरेशन रिमूव नहीं हुआ लेकिन ग्राफ रिमूव हो गए हैं। ठीक है, तो ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ हमने रिमूव किए, लेकिन आपने बेसिक कंसेप्ट तो पढ़ा ना स्पीड का, वेलोसिटी का, तो ग्राफ बनाओ। एग्जाम में बैठ के ग्राफ क्यों नहीं बनाया आपने, आपको कैलकुलेशन करनी चाहिए थी। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी उनको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है बाद में CBSE को कि यस द क्वेश्चन वाज नॉट फ्रॉम द डिलीटेड टॉपिक, इट वाज द कंसेप्चुअल क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीवियस टॉपिक। ठीक है, तो एक उनकी एक सिंपल एक्सप्लेनेशन से आपके क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं। तो यदि आप JEE के एस्पिरेंट्स हैं, आप नीट के एस्पिरेंट्स हैं, आप NDA एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है, तो आपको वो सारी चीज़ें पढ़नी है जो कि बेसिक से रिमूव कर दी गई है। क्योंकि यदि अभी आप 11th क्लास के स्टूडेंट्स हैं
ठीक है, तो आप जब 2 साल बाद 2022 में जाकर के 12th क्लास का एग्ज़ाम देंगे और उस समय जब आप जेई नीट एनडीए देंगे तो क्या होगा, वो चीज़ें हो सकता है फिर से सिलेबस में ऐड हो जाए। ठीक है, तो क्या करना है, बेसिकली आपको अपना कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रखना है। कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग रख के जो चीज़ें हटा दी गई हैं उनको भी एक बार आप गो थ्रू ये, क्योंकि ये चीज़ें आपस में कनेक्टेड है। एक बार के सिलेबस में रिमूव होने से हो सकता है वो बोर्ड के एग्जाम में नहीं आए, और जब सीबीएसई ने रिमूव कर दी दिया तो वो बोर्ड के एग्जाम में नहीं आएंगी, लेकिन वो चीज़ें आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चीज़ें आपके कंसेप्ट्स बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, जितनी ज़्यादा हो सकती है उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। फिर बात आती है न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, तो दूसरी बात न्यूमेरिकल्स की मैं करना चाह रहा हूँ यहाँ पर कि कुछ बच्चों के न्यूमेरिकल सेक्शन बहुत वीक होते हैं। जनरली जब मैं बच्चों से मिलता हूँ, इंटरेक्ट होता हूँ, तो सर हमारा मैथ 0 था तभी तो हमने बायो ले ली 11th क्लास में, मैथ्स तो हमें बिल्कुल आता ही नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर आपको बेसिक मैथ्स तो पढ़ना ही पड़ेगा। आपको फिजिक्स पढ़नी है ना, तो आपको बेसिक मैथ्स पढ़ना ही पड़ेगा। भैया फिजिक्स सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसकी लैंग्वेज ही मैथमेटिक्स है, इसकी लैंग्वेज ही मैथमेटिक्स है। तो ऑल्दो आप लोगों ने मैथ्स नहीं लिया है, लेकिन आप क्या करेंगे, आपके जो बेसिक फंडामेंटल टूल्स हैं, मैथमेटिकल टूल्स के रूप में जो 0 चैप्टर करवाया जाता है उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा, उसको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। और अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं तो जहाँ पर मैथ्स के बच्चों को सोल्व कर 20 क्वेश्चन सोल्व करते हैं, न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं, तो बायो के बच्चों को 40 न्यूमेरिकल सोल्व करने चाहिए, ताकि कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग बने, ताकि प्रैक्टिस हो। अब देखो डिफरेंशिएशन की बात करें तो ये डिफरेंशिएशन की चीज़ तो मैथ्स वाले बच्चे मैथ्स में पढ़ेंगे, वहाँ पे उनको डिफरेंशिएशन में हाथ इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि दे विल इजीली बी एबल टू डू डिफरेंशिएशन। लेकिन बायो वाले तो डीएनए को डिफरेंशिएट थोड़ी ना करेंगे, है ना। ठीक है, तो वो क्या करना है, उनको फिजिक्स में ही पढ़ना है भाई। तो फिजिक्स में पढ़ने के लिए तो उनको यहाँ पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बढ़ाइए, 40, 50, 60 जितने हो सकते उतनी कीजिए। मैथ्स वालों के पास तो एक चांस आएगा, जब मैथ्स में डिफरेंशिएशन का चैप्टर आएगा वहाँ पर वो अपने कंसेप्ट फिर से स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। लेकिन आप बायो के स्टूडेंट्स हैं, आपको ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। क्या करना है, अभी से लग जाइए न्यूमेरिकल्स के ऊपर। और बच्चों न्यूमेरिकल्स सीधे सीधे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड होते हैं। जितने अच्छे कॉन्सेप्ट्स उतने स्ट्रॉन्ग न्यूमेरिकल, जितनी ज़्यादा न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस उतने स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो लगे रहिए न्यूमेरिकल्स के ऊपर, दे दनादन प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर कहीं जेल जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना। आई विल जस्ट solve your problems and you can just write me down in the comment section. Okay, so बस हो गई बातें, अब काम की बात कर लेते हैं। That was acceleration. Okay, now acceleration को अपन कैलकुलेट कैसे कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं एक्सीलरेशन को कैलकुलेट करने के। तो 2-3 फॉर्मूले तो मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखे हैं। एक्सीलरेशन इज डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, एक्सीलरेशन इज डी वी बाई डी टी, एक्सीलरेशन इज वी डी वी बाई डी एक्स, एक्सीलरेशन इज वी माइनस यू बाई टी। तो ये 3-4 फॉर्मूले तो लिख दिए हैं, लेकिन अब हम ग्राफ की बात करते हैं कि ग्राफ की हेल्प से एक्सीलरेशन को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। तो लेट अस सी okay, how to calculate the acceleration from velocity time graph. So for that we must know about velocity time graphs, and you have learnt about velocity time graphs in the previous video. So acceleration of a body from velocity time graphs, from velocity time graphs, VT ग्राफ से किस प्रकार से एक्सीलरेशन निकालना है। तो ये बहुत सिंपल चीज़ है, एक्सीलरेशन निकालना VT ग्राफ से बहुत सिंपल चीज़ है। ठीक है, बहुत आसान। कैसे, स्लोप निकालना होता है। स्लोप कैसे निकालते हैं, देखो बच्चों अभी मैं जो बात बता रहा हूँ वो फॉर्मूले के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपकी 11th 12th जहाँ पर भी है, कोई भी फॉर्मूला जहाँ पर मान लीजिए जैसे एक्सीलरेशन पढ़ा अपन ने, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, तो जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का के बीच में जब ग्राफ बन रहा हो
और ये क्वांटिटी ये से डिवाइड हो रही है, तो स्लोप निकाल दीजिए। कैसे निकालते हैं देखो, स्लोप सीखते हैं पहले अपन। स्लोप ऑफ ए लाइन कैसे कैलकुलेट किया जाता है, सीखिए पहले इस चीज़ को। देखिए ये हमारे पास एक ग्राफ है, यहाँ ये अपना वाई एक्सिस है, ये अपना एक्स एक्सिस है। एक्स और वाई दो एक्सिस बना दिए मैंने, ठीक है। अब हम यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी, दिस इज ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन है ना, ठीक है। अब इस लाइन का स्लोप निकालना है, तो स्लोप का मतलब क्या होता है, तो स्लोप का मतलब होता है टेन थीटा। एम से डिनोट किया जाता है इसको, किससे डिनोट किया जाता है, एम से, और इसका मतलब होता है टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है, देखिए अगर ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ध्यान रखनी है, एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रही है, ये एंगल बना रही है थीटा। कौन सा एंगल बना रही है, थीटा। तो इस एंगल का टेंजेंट निकालना है। टेंजेंट वो टेंजेंट नहीं जो कर्व के ऊपर ड्रॉ करते हैं ना, टेन थीटा वाला टेंजेंट। तो जब वो टेंजेंट आपका कैलकुलेट हो जाएगा तो आपका लाइन का स्लोप आ जाएगा, ठीक है। कैसे, ये एक पॉइंट मान लेता हूँ, इस लाइन के ऊपर दो कोई पॉइंट्स हैं। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1, y1 है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x2, y2, ठीक है, ओके। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1, y1 है, इन कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है बच्चों, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस x एक्सिस के अलोंग x1 है, और इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस y एक्सिस के अलोंग y1 है, ठीक है, ओके, राइट। इस पॉइंट की बात करें तो इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस x एक्सिस के अलोंग x2 है, ठीक है, और इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस y एक्सिस के अलोंग हमारा y2, ये y2, ठीक है। अब मैंने एक लाइन ड्रॉ करी पैरेलल टू द x एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल, ये एक लाइन ड्रॉ करी। इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने P, इस पॉइंट को नाम दे दिया Q, और जहाँ ये मिले इन दोनों का मिलना R हो गया, ठीक है। अब क्योंकि ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, क्या है, पैरेलल, तो इफ ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन गए। अब ये डिस्टेंस आपका x2 है, ये डिस्टेंस x1 है, तो बाय जस्ट सिंपल ज्योमेट्री दिस डिस्टेंस विल बी x2 माइनस x1, राइट, है ना, एंड दिस डिस्टेंस विल बी y2 माइनस y1, ठीक बात है। अब हम बच्चों स्लोप ऑफ द लाइन निकालते हैं, टेन थीटा कैलकुलेट करते हैं। यहाँ देखिए टेन थीटा, भाई वो पढ़ा है ना आप, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब कई बच्चों ने इसको याद किया, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। तो वो आप लोगों की मर्जी है आप कैसे याद करते हैं, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हम टेन थीटा निकालते हैं तो वो क्या हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाता है। तो परपेंडिकुलर क्या होता है, जो एंगल बन रहा है राइट एंगल, उसके जस्ट सामने वाली जो साइड होती है हमेशा परपेंडिकुलर होती है। तो क्यू आर जो है वो अपना परपेंडिकुलर है, और जो पी आर है वो अपना बेस, पी आर अपना बेस। तो टेन थीटा की वैल्यू आई, क्यू आर की वैल्यू बेटा y2 माइनस y1, पी आर की वैल्यू x2 माइनस x1, टेन थीटा की वैल्यू ये आ गई। अपन कह सकते हैं चेंज इन y कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन x कोऑर्डिनेट, और इसी चीज़ को अपन स्लोप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्लोप। तो स्लोप ऑफ लाइन निकालना बहुत आसान है, करना कुछ भी नहीं, चेंज इन y कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन x कोऑर्डिनेट निकाल दीजिए, यो ठीक है, ओके। अब अगर हम उसी प्रकार से, अब इस चीज़ को समझिए, अगर मुझे एक्सीलरेशन निकालना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, तो वो किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाएगा। तो एक्सीलरेशन कैलकुलेट करने के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ से आपको वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ मिलेगा। देखिए यहाँ पर बना देता हूँ मैं एक छोटा सा ग्राफ। मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है,
वेलोसिटी और टाइम के बीच में, वो ऑब्जेक्ट कुछ वेलोसिटी से मूव कर रही है और उसका ग्राफ अपने पास कुछ ऐसा आया। अब हमें एक्सीलरेशन निकालना है, एवरेज एक्सीलरेशन। तो क्या होता है, स्लोप क्या होता है, पहले ये देखो, स्लोप होता है चेंज इन वाई एक्सिस अपॉन चेंज इन एक्स एक्सिस। एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अब यहाँ देखो वेलोसिटी कौन से एक्सिस पर प्लॉट है, वाई एक्सिस पर। टाइम कौन से एक्सिस पर प्लॉट है, एक्स एक्सिस पर। तो अगर मैं इस लाइन का स्लोप निकाल दूं तो क्या मिल जाएगा, एक्सीलरेशन। तो स्लोप निकालने के लिए कम से कम आपको 2 पॉइंट्स चाहिए, ठीक है, या तो 2 पॉइंट्स चाहिए या एक एंगल थीटा चाहिए। अब जिस लाइन का स्लोप ज़्यादा होगा उस लाइन का एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा, उस ऑब्जेक्ट का एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा। अब ये बात समझाने के लिए एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक बहुत इजी सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। क्या है एग्जाम्पल, देखते हैं बेटा। लेट अस सी एग्जाम्पल क्या है। तो एग्जाम्पल है हमारे पास कि मान लीजिए एक बॉडी है ए और वो कुछ इस प्रकार से चल रही है कि उसकी वेलोसिटी टाइम ग्राफ को प्लॉट किया तो एक स्ट्रेट लाइन आ गई। एक बॉडी है बी जो कि इस प्रकार से चल रही है कि उसका वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमने ड्रॉ किया तो वो कुछ इस प्रकार से आ गया। अब सवाल ये है, क्या है सवाल, सवाल ये है कि इनमें से कौन सी बॉडी ऐसी है जिसका एक्सीलरेशन ज़्यादा होगा, ठीक है। फिगर को ध्यान से देख लीजिएगा। अब देखो बेटा, बॉडी ए है, ए एंगल एक्स एक्सिस के साथ बना रही है θ1। बॉडी 2 है, वो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है θ2, ठीक बात है ना। तो अब आप देखेंगे कि θ2 की वैल्यू θ1 से ज़्यादा है ना। और टेंजेंट में क्या होता है, जैसे जैसे थीटा बढ़ता है टेन थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है, टेन 0 की वैल्यू 0, टेन 90 की वैल्यू इनफाइनाइट, तो 0 से इन्फिनिटी पहुंच गई बस 90 डिग्री में, है ना। तो इसका मतलब टेन θ2 जो है वो बड़ा होगा टेन θ1 से, ठीक है, ओके। इसका मतलब बी वाली लाइन का स्लोप ज़्यादा होगा ए वाली लाइन के स्लोप से। अब स्लोप क्या करता है, किस चीज़ को डिनोट करता है, एक्सीलरेशन को। तो इस चीज़ का मतलब है कि एक्सीलरेशन ऑफ बी विल बी ग्रेटर देन एक्सीलरेशन ऑफ ए। सीधी बात, नो बकवास, ठीक है। एक्सीलरेशन जो है वो इतना आ गया। किसका ऑब्जेक्ट का ज़्यादा है, बी का ज़्यादा है। दोनों ने साथ साथ शुरू किया था, साथ 0 स्पीड से, लेकिन बी की स्पीड ज़्यादा बढ़ रही है, ए की स्पीड कम बढ़ रही है, तो एक्सीलरेशन किसका ज़्यादा होगा, बोलो किसका ज़्यादा होगा, ए का ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ए का एक्सीलरेशन हमारा कम है, ए का एक्सीलरेशन बी के एक्सीलरेशन के रिस्पेक्ट में कम है। एक्सीलरेशन के बारे में और बात करें तो एक्सीलरेशन का जो नेचर होता है वो कैसा होता है, कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है, तो भाई एक्सीलरेशन वेक्टर है। क्यों है, क्योंकि एक्सीलरेशन आया बाय द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी से, है ना। तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी, वेक्टर, तो वेक्टर क्वांटिटी अपना एक्सीलरेशन हो गया, ठीक है। यूनिट क्या होती है एक्सीलरेशन की, देखो एक्सीलरेशन को आपने डिफाइन किया इज डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, ठीक है। तो v को किस में मेज़र करते हैं, मीटर पर सेकंड में। टाइम को किस में करते हैं, सेकंड में। तो एक्सीलरेशन हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हो गया ना एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसकी यूनिट हो गई। कौन सी यूनिट है ये बेटा SI यूनिट है। कौन सी यूनिट है, SI यूनिट, ठीक बात, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आपसे पूछा जाए कि डायमेंशनल फॉर्मूला बताइए एक्सीलरेशन का कितना होगा, तो एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, LT-1, ठीक है, अपॉन टाइम का t डिवाइड कर दीजिए, ये क्या बन जाएगा LT-2,
ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया एक्सीलरेशन का। तो दैट्स ऑल अबाउट द डिस्कशन ऑफ एक्सीलरेशन। अब एक और बात बस छोटी सी जाते जाते, एक्सीलरेशन दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक्सीलरेशन दो प्रकार का होता है। चलो इस चित्र को मिटा देते हैं, अब हमारा इससे कोई लेना देना नहीं रहा। तो इस ग्राफ को एक बार रिम के लिए रब कर रहा हूं मैं। एक्सीलरेशन जो है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? पॉजिटिव एक्सीलरेशन और नेगेटिव एक्सीलरेशन। एक तो होता है बच्चों पॉजिटिव एक्सीलरेशन और एक होता है बेटा नेगेटिव एक्सीलरेशन। जब ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ती चली जाती है, जब ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ रही है, यानी कि जब आपका v ग्रेटर देन u है, उस समय एक्सीलरेशन अपना पॉजिटिव होता है। एक्सीलरेशन कैसा होता है? पॉजिटिव, एक्सीलरेट कर रही है गाड़ी। और जब ऑब्जेक्ट की स्पीड कम हो रही है, फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम हो गई, अब मतलब क्या हुआ? ब्रेक लगा दी। ब्रेक लगाने से आपका एक्सीलरेशन बन जाता है नेगेटिव। नेगेटिव एक्सीलरेशन को रिटार्डेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? रिटार्डेशन कहते हैं। और जिस मोशन में रिटार्डेशन हो रहा हो तो उस मोशन को अपन रिटार्डेड मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिटार्डेड मोशन। ठीक है, तो ये एक्सीलरेशन की पूरी जन्म कुंडली अपन ने देख ली है कि क्या होता है एक्सीलरेशन, क्या इस प्रकार से कैलकुलेट होता है, कौन कौन से मेथड्स होते हैं, पूरी जन्म कुंडली आपने एक्सीलरेशन की निकाल दी। ठीक है, अब बात करेंगे कि अब जन्म कुंडली मिल गई तो अब क्या करते हैं? अब इसका भविष्य देख लेंगे। ठीक है, जन्म कुंडली से अब भविष्य निकालेंगे इसका। अब एक्सीलरेशन का यूज़ कहाँ होगा? तो एक्सीलरेशन तो हमारी डेली लाइफ में बहुत जगह यूज़ हो रहा है, हर व्हीकल में यूज़ हो रहा है। जिसको देखो स्पीड की बात कर रहा है, बढ़ाए जा रहे हो स्पीड, बढ़ाए जा रहे हैं स्पीड, बढ़ाए जा रहे हैं। किसी की पढ़ाने की स्पीड बढ़ रही है, किसी की डिक्रीज हो रही है ना। तो एक्सीलरेशन ही है ये सारा। एक्सीलरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है काइनेमेटिक्स में, और मैं बात करूँ तो मैकेनिक्स में। पूरी मैकेनिक्स एक्सीलरेशन के चारों ओर घूमती है। ठीक है, कैसे? क्योंकि अभी अपन आने वाले लेक्चर्स में जब फोर्स के बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि फोर्स बिना एक्सीलरेशन के कुछ भी नहीं है, और बिना फोर्स के ये दुनिया कुछ भी नहीं है। ठीक है बच्चों, तो क्या करना है? ध्यान से देखना है, इस एक्सीलरेशन के कंसेप्ट को समझना है। इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड आपको कम से कम स्पीड वेलोसिटी मिला करके कम से कम 20 से 25 न्यूमेरिकल्स निकालने हैं। ठीक है, निकाल लेंगे। उसके बाद अगले वीडियो में मैं तुम्हें काइनेमेटिक्स की इक्वेशंस के बारे में बताऊंगा, जिनको अपन इक्वेशंस ऑफ मोशन कहते हैं। ठीक है, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, और उसी के बिहाफ पे अपन कुछ क्वेश्चंस भी हैं, न्यूमेरिकल्स आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो अब वीडियो देख लिया पूरा कंप्लीट, समझ में भी आ गया होगा कंसेप्ट। तो अब उसके बाद if you are a subscriber then it's good thing, but if you are not a subscriber then press the subscribe button and also click on that bell icon। उस बेल आइकन पर और क्लिक कीजिएगा, क्योंकि आपको उसी के बाद नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे हर वीडियो के अपलोड होने के बाद। जुड़े रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।